हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर लॉजिक वाल्व को ही कंटिन्यू करते हुए लॉजिक वाल्व में प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है और रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ उसको देख के आप लोगों को पुराना रिलीफ वाल्व का जो हमने लेक्चर दिया था उसके बारे में भी एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए, ए स्लिप इन cartridge relief valve works like a traditional relief valve as shown in figure. It is two stage or pilot operated relief valve. अभी देखिए, ये मेन स्टेज है, ये पायलट स्टेज है। ये कवर है, कवर में रिलीफ वाल्व लगा हुआ है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ये कार्ट्रिज वाल्व लगा हुआ है ये। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ट्रांजिशन रिलीफ वाल्व में क्या रहता है? ट्रांजिशन रिलीफ वाल्व पायलट सेंसिंग पैसेज ऑफ 0.04 इंच, मतलब 1.01 mm का रहता है, जो छोटा सा होल रहता है through the spool. A slip-in cartridge relief valve pilot sensing passage is a drilled hole in the manifold that connects the A port to the X port and the control orifice in the cover. ये देखिए, ये X और ये हमारा एक ऑरिफिस दिया हुआ है, फिक्स ऑरिफिस दिया हुआ है। इससे होते हुए ये एक रिलीफ वाल्व को जा रहा है। रिलीफ वाल्व कंट्रोल करने के लिए हमें कार्ट्रिज वाल्व में आ रहा है। इसमें डिफरेंट पोर्ट्स है, A पोर्ट, B पोर्ट टैंक को जा रहा है, X थ्रू एक्स होते हुए रिलीफ वाल्व को जा रहा है और इसी से एक पायलट आया हुआ है स्प्रिंग चैम्बर को, पॉपेट वाल्व स्प्रिंग चैम्बर को, कार्ट्रिज वाल्व के स्प्रिंग चैम्बर को आया और ये रिलीफ वाल्व का एक इंटरफेस पे वाई पोर्ट है जो कि टैंक प्लेन को कनेक्ट हो रहा है। ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो यही बताया हुआ है, स्लिप इन cartridge relief valve pilot sensing passage a drill hole in the manifold that connects the A port to the X port and the control orifice in the cover. Notice the three pilot connections at the cover interface. X is the pilot sensing connection, Y is the drain connection and Z is the vent connection. अगर वेंट यूज करना है तो जेट पोर्ट रहता है, इसको ये प्लग भी रहता है। अगर वेंट में यूज नहीं करते तो ये प्लग भी कर सकते हैं। Flow through the main stage is from A to B. The Y port may be connected to B or to a separate drain. Like a conventional relief valve, any back pressure in the drain port adds directly to the setting of the valve. जैसे उसमें भी दिखाया था कि जनरली जो ड्रेन पोर्ट रहता है टैंक को जाता है और कभी कभी बैक प्रेशर जनरेट करता है। The J port may be drilled in the manifold to connect to a vent control or to remote pressure pilot. अगर रिमोटली यूज करना है तो उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट नीडेड, इट इज सिंपली नॉट ड्रिल्ड इन द मैनिफोल्ड। अगर हम मैनिफोल्ड की जरूरत नहीं है, मैनिफोल्ड लगाने की जरूरत, वेंट की जरूरत नहीं है, तो मैनिफोल्ड में हम ड्रिल नहीं कर सकते हैं। थ्री प्रेशर रेंजेस आर अवेलेबल बाय चेंजिंग द स्प्रिंग इन द पायलट सेक्शन। द मेन स्टेज स्प्रिंग रिमेन्स द सेम इन ऑल केसेस। अभी आते हैं, यूजुअली ए कार्ट्रिज वाल्व इंसर्ट विथ 1:1 एरिया रेशियो इज यूज्ड एज द मेन स्टेज। द A port is connected to a system pressure and the B port is connected to the tank. The adjustable spring in the cover determine the pressure setting of the valve. At all pressures below this setting, the pressure in the AP area will be equal to the system pressure at the A port. Because the pilot sensing passage connects the A port to the AP area by the way of the X port and to the control orifice. Because the A area is equal to the AP area and the pressure on these areas is the same, the cartridge insert spring will keep the insert spool closed against the seat in the sleeve. When the system pressure reaches the pressure setting of the pilot valve poppet in the cover, the pressure in the AP area will be limited to this valve. If system pressure continues to increase, a small pilot flow will be established through pilot port X, the control orifice, the pilot valve poppet, the port Y and the drain. The control orifice limits the amount of this pilot flow. When system pressure increases beyond the AP pressure plus the value of the insert spring, 30 psi जिसका रहता है, the insert spool opens to allow from A to B to the tank. This limits the maximum system pressure. ये देखिए, अब जैसे हमारा ये कार्ट्रिज वाल्व लगा हुआ है और यहीं से हमारा A प्रेशर लाइन आ रहा है, यहाँ से सिस्टम को प्रेशर जाएगा। सिस्टम को प्रेशर जनरली रिलीफ वाल्व क्या रहता है, सिस्टम प्रेशर के पैरेलल में लगा रहता है। तो ऐसे प्रेशर जाएगा ए से जाते हुए, ये कार्ट्रिज वाल्व है, यहाँ से हमारा ये कवर है, रिलीफ वाल्व कवर, यहाँ से एक्स पोर्ट है, एक्स से होते हुए देखिए ये फिक्स ऑरिफिस है, यहाँ से होते हुए एक जेड ऑरिफिस है जो वेंटिंग के लिए, लेकिन ये बंद है, एक क्रॉस मारा हुआ मतलब ये बंद है। तो आयल ऐसे होते हुए यही आयल एपी चैम्बर में आ रहा है। जो इधर का प्रेशर रहेगा वही प्रेशर इधर भी रहेगा, प्लस ऊपर वाला प्रेशर ये, प्लस ये जो स्प्रिंग का हमारा 30 psi बताया हुआ, 30 psi का प्रेशर रख के इसको बंद रखता है। पैरेलल में ये लाइन आके ये इधर से आके ये रिलीफ वाल्व, ये नॉर्मली रिलीफ वाल्व क्लोज वाल्व रहता है, नॉर्मली क्लोज, ये क्लोज वाल्व है। जैसे जैसे यहाँ से सिस्टम प्रेशर सेटिंग बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ तक का प्रेशर बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाए कि ये रिलीफ वाल्व का जो हमें स्प्रिंग सेट किया है, देखिए जहाँ पे ये है एडजस्टेबल स्क्रू है, इसको हम जितना टाइट करते हैं उतना हमारा सिस्टम प्रेशर मिलता है, मतलब यहाँ से आगे ब्लॉक रहता है। अभी
आयल हमारा देख रहे हैं ए से एक्स से होते हुए इधर से होते हुए यहाँ पे कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑर्बिट है, यहाँ से होते ऊपर से आके ये आके एपी पे रुका हुआ है। तो अब इधर का प्रेशर सेम रहेगा। अब ये 1:1 रेशियो वाला हमारा ये कार्ट्रिज वाल्व है, तो जब प्रेशर इधर का बराबर प्लस ऊपर से हमें 30 psi का स्प्रिंग प्रेशर मिल रहा है। ये दोनों मिलकर हमेशा ये बंद रहता है, मतलब सिस्टम में ऐसे आयल जाता रहता है। एक कंडीशन ऐसा आता है, इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। देखिए सीट पोपेट, ये सीट है, यहाँ पे पोपेट सीट हुआ है, ये स्प्रिंग है। जब इधर से टाइट करते हो तो स्प्रिंग टेंशन हमारा बढ़ता है। इधर से होते हुए वाई ड्रेन पोर्ट है, अब जहाँ से इधर निकलता है तो ये जाके वाई टैंक को मिल रहा है। ये हमारा कार्ट्रिज वाल्व इंसर्ट्स है, इसमें स्पूल है, ये स्प्रिंग है जो 30 psi के प्रेशर पे है, ये स्लीव है, ये एपी एरिया है। तो ये उसका फिगर है। जैसे जैसे सिस्टम प्रेशर हमारा बढ़ना शुरू होता है तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये हमारा वाल्व खुल जाता है। जैसे ये वाल्व खुल जाता है तो इधर का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे इधर का प्रेशर कम होता है, इधर का प्रेशर सब ज़्यादा होता है। ऊपर में इनिशियल में क्या रहता है कि इधर का प्रेशर प्लस स्प्रिंग प्रेशर उसको मिलकर क्लोज कंडीशन में रखता है। लेकिन जब ये खुलता है, जब इधर से प्रेशर इधर से निकलना शुरू होता है तो ये इधर का फोर्स, ऊपर से जो दब के फोर्स है वो कम हो जाता है। उस कंडीशन में आयल हमारा इधर से होते हुए टैंक को चला जाता है। ये रहा पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के बारे में। ये मेन स्टेज है, ये पायलट स्टेज है जहाँ से हम सेटिंग करते हैं। तो हमको बताने के बाद उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पहले जो हमने बताया था वो भी एक बार रिफ्रेश हो गया होगा। उसमें मेन स्टेज में एक यहाँ पे स्पूल रहता था, स्पूल में एक छोटा सा छेद रहता था जिससे कि आयल होते हुए इधर से आके इधर रहता था, वो सब हट के ये कार्ट्रिज वाल्व लगा हुआ है। तो ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के बारे में हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वेंटिंग कैसे करता है। प्रेशर कंट्रोल स्लिप रिलीफ valve operation, venting of a relief valve. A spring offset single solenoid direction valve as shown in figure may be mounted on relief valve cover with an appropriate interface. ये नीचे वाला वो रिलीफ वाल्व था। और अभी देखिए यहाँ से जो हमारा पायलट इधर को जा रहा है, और पायलट के पैरेलल में हम एक लेकर रिलीफ वाल्व के पैरेलल में लेकर हमने एक डीसी वाल्व डाल दिया। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में कैसा ही है। नॉर्मल कंडीशन में ये प्रेशर हमारा इधर से इधर जाते हुए इधर को जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या रहेगा, रिलीफ वाल्व हमारा ओपन रहेगा, जो भी आयल रहेगा इधर से उठते हुए टैंक को जाता रहेगा। जैसे ही ये हुआ बेंटिंग, जैसे ही ये एनर्जाइज होगा तभी क्या होगा, जब से एनर्जाइज हो तो ये पोर्ट चेंज हो जाएगा और ये पोर्ट क्लोज हो जाएगा। ये पी प्रेशर जो है क्लोज हो जाएगा, क्लोज होकर तब ये रिलीफ वाल्व का काम करने लगेगा। यही है वेंटिंग ऑफ द रिलीफ वाल्व। तो इसमें क्या लिखा, विद सनलाइट डी एनर्जाइजर शोन इन द रिलीफ वाल्व ड्रेन्स थ्रू द सनलाइट वाल्व P to B to Y द ड्रेन। व्हेन द सनलाइट इज एनर्जाइज, जब एनर्जाइज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में P to B to Y जाता रहता है। जब एनर्जाइज होता है द विंड पैसेज इज ब्लॉक्ड एट द सनलाइट वाल्व एंड द रिलीफ वाल्व इज क्लोज एट ऑल प्रेशर अप टू इट्स प्रेशर सेटिंग। तो जैसे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही उसमें भी रहता था, जो वेंटिंग सर्किट रिलीफ वाल्व के बारे में जिसमें कार्ट्रिज वाल्व नहीं रहता था, उसमें भी तो यही सिस्टम रहता था। रिलीफ वाल्व के ऊपर में वेंट के लिए लगा रहता था। नॉर्मली क्या रहता था, जैसे ये पंप के ऊपर लगा रहता था, पंप जैसे चालू करते थे तो थोड़ा देर के लिए हाफ मिनट और 1 मिनट के लिए ये अनलोड हो जाते हैं, पंप के सेफ्टी के लिए और इनिशियल पावर चूंकि ज़्यादा चाहिए उसके लिए देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि ये वेंट होते रहता था। लेकिन जैसे ही एनर्जाइज आता था, एनर्जाइज होता था, दोनों साइड से हो सकता है, अगर एनर्जाइज में ये ओपन है तो डी एनर्जाइज में बंद होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जैसे ही सिस्टम लोड में आता था ये एनर्जाइज होता था, तो वैसे ही यहाँ पे डी एनर्जाइज है तो ये वेंटिंग हो रहा है। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये रिलीफ वाल्व की तरह काम करने लगेगा। तो फ्रेंड ये बता के मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्ट्रिज लॉजिक रिलीफ वाल्व के बारे में समझ में आ गया है। और कार्ट्रिज वाल्व जो भी लगा हुआ है स्लीपिंग टाइप का कार्ट्रिज वाल्व कैसे काम करता है ये क्लियर हो गया होगा। मेरा कहना है कि पिछला लेक्चर में जो हमने बताया था चेक वाल्व कवर चेक वाल्व के बारे में बताया था, वो भी जो हमारा कन्वेंशनल चेक वाल्व है उससे मिलता जुलता है। उसमें कार्ट्रिज लगा के उसे कंट्रोलिंग किया हुआ है अलग से। तो ये बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं फिर आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा लाइक ज़रूर करें, इससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँगा और नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा स्लीपिंग कार्ट्रिज वाल्व में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में रहेगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।